ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੈਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ YouTube ਤੇ ਪੂਰੀ। ਜ਼ਰਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਟੀ ਹਲਾਲ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਹਰਾਮ। ਨਹੀਂ ਤਰਦੀ ਆਣ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਹੀ ਯਾਰ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਪੱਪੂ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਂਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਮੈਂਟ ਖੋਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਾਬਕਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਸਦੀਕ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ, ਯਹੂਦੀਅਤ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਬਕਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ, ਮਲਾਇਕਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਘਨ ਚੱਕਰ ਇਹਦੀ ਸੂਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਿਆਣੀ, ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕੀ ਕਰਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਕੁਤਬ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੈਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਭਾਈ, ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖੋ। ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਮਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੌੜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ। ਇੰਡੀਆ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਣਾ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੇਡਾ ਆਪੇ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। हलीम साहब खैरियत है? जी पीर साहब खैरियत। पीर साहब हलीम साहब थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए आपसे बात करने का। जी पीर साहब मैं देखें, एक जो लॉजिक है आप उसको समझें। जब हम बात करते हैं ना आपके भाइयों से या अहमदियों से, वो कहते हैं कि ये कैसा मुमकिन है जब भी कौम बिगड़ जाए, लोग बिगड़ जाएं, अकायद ख़राब हो जाएं, तो इस्लाह के लिए लोगों की। अच्छा, मुझे जाहिद खान साहब ने बजाते खुद फोन किया मसीह ज़मान ने। अगर कहते तो उनको भी ले लेता हूँ जो मेन हेड थे। ठीक है, मेरी बात तो सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह अलीम साहब, डॉक्टर होली स्पिरिट भी है नहीं, वो भी चंगे क्वेश्चन पूछते ने। बिस्मिल्लाह। लेकिन मसीह ज़मान है, आप लोगों ने बारी बारी बात करनी है, शोर नहीं डालना। मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। पीर साहब, मसीह ज़मान का फोन आ गया, आप तुम्हारे साथ ही हैं। फोन ले प्लीज फोन लो। वो तो मसीह डॉक्टर होली स्पिरिट, आप बात करेंगे उनसे। इससे जाहिद खान जो नबी का दावा। हाँ जी, वो लिंक साहब के साथ लाइन पे हैं।
नहीं चलें, फोन पे भी थोड़ी बात लोगों की आगाही के लिए थोड़ा। हाँ हाँ, मैं उन्हें याद भी करा दूंगा मैं उन्हें कहाँ मिला था। हलीम साहब ने म्यूट किया हुआ है, वो उनसे बात कर रहे हैं, अगर करते हैं वो बात तो आप उनसे बात करें, थोड़ा इनको बताएं कि भाई मिर्जा साहब का दावा, इनका दावा और ये क्या फर्क है, कितना कोई पेंडा है। डॉक्टर साहब जो डॉक्टर साहब तारिक जोहान के साथ जो वाकया हुआ था रिपीट यहाँ पे करा दे, हमें याद करा दे, जज़ाकल्लाह खैर। चले ठीक है, तो फिर किसी और वक्त रख लें, किसी वक्त, क्योंकि ठीक है अगर आप बिजी हैं अभी तो फिर बाद में कभी हो जाएगी। ठीक है, मैं पहले बता दूंगा, पहले अपॉइंटमेंट कर लूंगा मैं। ठीक है जनाब, ठीक है जाहिद खान साहब, जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, जी 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 जी। नहीं मुलाकात नहीं हुई हमारी अभी तक। सैयद से बात हुई है, आपकी मुलाकात हुई है? हाँ, मुझसे मुलाकात हुई है इनकी नहीं, आप मुझे बर्कशायर जानते हैं, में, मैं आई दूसरे विकम नंबर से में। कॉल कर रहा हूँ, तो मैं हाँ जी, आप मुझे जानते हैं, मैं अभी सेमिनार में हूँ, वो अपना एक लाइव सेशन में हूँ, तो फिर आप भी बिजी हैं, तो फिर दोबारा हो जाएगी बात। ठीक है जी, खुदा की सलामती हो जी आप पे, अल्लाह हाफिज। जी जी, वो गलती साडी है, ਅਸੀਂ अपॉइंटमेंट लिया बगैर फोन कर लिया। जी आवाज आ रही है मेरी? नहीं चलो फिर टाइम तो मिल ही गया ना, नेक्स्ट टाइम गल तो हो ही सकती है ना। हाँ जी, ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਮਾਸਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਮਮਾਸਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸੈयद उल स्पिरिट साहब जी साहब का तजर्बे ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ना ਦੱਸੋ ना, ਕਿ ਇਹਨਾਂ मैंने ਦੇ इनसे नबूवत बात की हुई है जी, मेरा तजर्बा नहीं, 1 to 1 बात हुई है जाहिद खान से बर्कशायर थोड़ा में। उसको रिकाउंट करें उसको। हाँ जी, बर्कशायर एक जगह है यहाँ पर लंदन के बाहर करके, वहाँ कुछ साल पहले एक इंग्लिश डिफेंस लीग के नाम से आपने सुना होगा कि ये जो बड़े रेसिस्ट किस्म के लोग हैं ना, वो कोई मुजाहरे वगैरह डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, तो वहाँ पर वो जाहिद खान आ गया, और बल्कि एक दिन का अक्सर हिस्सा वहाँ पर रहा। तो किसी ने, हम गुजर रहे थे तो किसी ने मुझे कहा कि ये नबूवत का दावेदार है, मैं उसको पहले से भी नाम सुना था। ये आदमी जो है ना, ये स्किज़ोफ्रेनिक है और ये अंडर ट्रीटमेंट भी है, इससे पूछें कि वो दवाई कैसी चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, इसका दावा ये है कि ये जनाब आसमानों की सैर को जाता है, फिर नाउज़बिल्ला अल्लाह ताला के साथ बैठ के खाना वाना खाता है, मुलाकात करता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, और फिर बाकी जब दूसरे वहाँ से फरागत होती है तो रास्ते में तमाम अंबिया से मुलाकात करता है ये आदमी। और इसने मुझे कहा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो थे उन्होंने इसके हाथ पर बैत की हुई है और इससे सीख रहे हैं रूहों के दुनिया में, क्योंकि दुनिया में जो कुछ सीखा वो बड़ा घपला था उसमें। तो मैंने कहा कि भाई तुमने क्या सिखाया मिर्जा गुलाम कादियानी को? कहने लगा जी मैं उसे बता रहा हूं कि उधर ऊपर भी रूहों के भी दर्जे हैं जी, इसके मुताबिक ये सही पागल है ये शख्स जो है, स्किज़ोफ्रेनिक क्लासिक। तो मैंने इससे पूछा कि भाई रूहों के कौन से दर्जे हैं? कहता है जी बस कोई जो ज्यादा जानती, इनके हाथ 6 चाबियां इसने इजाद की हुई है अल्लाह से मुलाकात की। अगर इसके किसी डिसाइपल से आप मिलेंगे ना तो वो आपको बताएगा जी अल्लाह ताला से मुलाकात की 6 चाबियां हैं। जिस दिन 6ठी चाबी लग गई ना, समझो तुसी अर्श ते ना बुआ खुल गया तो फिर तुसी दाखिल। वहां पर ये और बात कहते हैं कि तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें ही अल्लाह ताला की तलाश नहीं थी, अल्लाह ताला तो असल में तुम्हें ढूंढ रहा था। तो मैंने उससे कहा यार मेरी मुलाकात करवा दे। कहता नहीं यार तेरे अमाल कुछ चंगे नहीं लगते, तेरे सवाल गलत ने। मैं क्या अच्छा गड़बड़ क्या है मेरे सवालों में? कहता है जी मतलब तुम्हारी रूह बड़ी थिक है। मैंने कहा जरा मेरी रूह को हाथ लगा कर बताओ। तो उसने कहा आंखें बंद करो। मैंने की आंखें बंद, उसने मेरे सर के पीछे, कहता है यहाँ है तेरी रूह। मैंने कहा तुझसे ज्यादा जाहिल शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा।
اور اس کے جو اگر یہ باقاعدہ جناب سیشن لگاتا ہے اور اس کی فالوئنگ ایسے شروع ہوئی کہ یہ جاتا تھا اسکیزوفرینیا ری ہیب کورسز کے لیے، جرمنی میں رہتا ہے کہیں پر، وہاں پر بہت سارے اسکیزوفرینک سے اس کی ملاقات ہوئی. اگر آپ کسی اس کے قریبی سے ملیں گے تو آپ کو 5-10 منٹ میں اندازہ ہو جائے گا گڑبڑ کہیں ضرور ہے. وہ آپ کو بڑے اعتبار سے بتائے گا کہ میری بھی خدا تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، اور آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی صاحب تمہاری تو ہو گئی، میرے بارے کی رائے ہے؟ تو کہتا ہے جی تم آ جانا، 40 دن کا کورس ہے، 6 چابیاں ہیں. اور میں نے کہا کہ کچھ لوگ تو ہوں گے جو گئے ہوں گے، تو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، یہ برکشائر کی ہائی وکم کی بات ہے، آپ اسے پتہ کر لیں. بلکہ وہاں پر بہت فوٹوگرافی ہوئی اس کی، تو کہیں نہ کہیں اس نیوز کو بھی آپ کو مل جائے گی، کیونکہ اس پر پولیس کا بڑا سخت ایکشن ہوا تھا. یہ خبیث بھی پکڑا گیا. تو میں نے اس سے پوچھا اوے اپنے خدا نو آواز دینا ہے پولیس والے نو روک کے، کہندا ہے نہیں وہ باتیں وہیں پر، یہ باتیں یہاں پر. میں کہا یہ ٹھیک ہے، بڑے کمال کی بات ہے. اس کا یہ آپ کو ایک اور بات بتائے گا کہ وہ سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے. اور ایک یہ بڑی عجیب بات آپ کو بتائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور درود نہیں پڑے گا رسول پاک پر، کہ ہزاروں نبی آئے ہیں. کہتا ہے جی مرزا غلام قادیانی تو ان میں سے ایک ہے، بڑے نبی آئے. تو خیر یہ اس کے عقائد ہیں، یہ ڈاکٹر اسکیزوفرینک ہے. صاحب میں صرف 1 منٹ چاہیے مجھے آپ کے بعد، آپ ختم کر لیں. نہیں میری بات ختم، آپ اچھا کریں بات. ڈاکٹر صاحب میری نا ان سے کئی دفعہ آپ ایک بات بات، علیم صاحب مجھے پہلے بتائیں، جو میں نے باتیں کہی ہیں آپ نے یہ میں باتیں ابھی سنی؟ وہی اسی طرف آنے لگا ہوں. میں یقین کیجئے ایسا اتفاق ہے، میری ان سے کئی دفعہ ٹیلی فونک گفتگو ہو چکی، اور ان کے جو اطہر صاحب ہیں ان سے تو کافی دفعہ بات بھی ہو چکی، اور ان کا میں پہلے ایک تقریباً 2 گھنٹے کا انٹرویو بھی کر چکا ہوں. لیکن ایسا اتفاق ہے کہ جو انہوں نے باتیں ہمیں آج بتائی ہیں، سیم ٹو سیم وہی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں. آپ نے کوئی نئی بات نہیں بتائی. اچھا میری باتیں ان سے میچ اتفاق ایسے کرتی ہے، ہیں؟ میری بات سنیے گا. 6 چابیوں کا جو ذکر ہے، میرا یقین کیجئے کسی پچھلی کنورسیشن میں انہوں نے وہ بات نہیں بتائی، آج بتائی. باقی بھی جو باتیں آپ نے ابھی بیان کی ہیں، یقین کیجئے آپ سے پہلے سارے لوگوں نے سنی ہے، خالی آپ نے نہیں سنی. وہی باتیں آج آپ نے بتائی ہیں. آپ نے اس سے کوئی نئی بات ہمیں نہیں بتائی. کوئی ایسی بات بتائیے جو اس نے آج نہ بتائی ہو. یہ میرا سوال ہے. اچھا آپ کو نہیں باتیں تو وہ یہی بتاتے ہیں. ان کا ایک سیٹ کورس ہے جی 40 ڈیز کا، اس میں اس کی میں نے سلیبس دیکھا ہے، مطلب مجھے زبانی بتایا گیا. اور بات اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کتنی یہ باتیں ساری پتہ ہے، باتیں لیکن پوائنٹ ٹو پوائنٹ اسی ترتیب کے ساتھ وہ آج ہمیں بتا گئے ہیں. حالانکہ یہ باتیں میں نے کئی دفعہ ان سے گفتگو کی ہے، لیکن جی وہ باتیں کچھ مختلف تھی. لیکن جو آج آپ نے بتائی ہیں وہ ابھی آپ سے 5 منٹ پہلے آپ کی موجودگی میں وہ بتا رہا تھا. میں نہیں یہ نہیں میں کہہ تو رہا، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ابھی سن کے ابھی بتا دی ہیں. یہ میرا نہ مطلب نہ نہیں نہ ہے. نہ میں کہہ رہا ہوں کوئی اور نئی انفارمیشن ہے تو میں وہ آپ کو شیئر کر سکیں. ایک اور بات بتاؤں. میں نے اس آدمی کے مفتی مبشر صاحب نے بے شمار انٹرویو کیے ہیں. یہ جو ہے نا زاہد صاحب، ان کے مفتی مبشر کی آپ کو جو یوٹیوب ہے اس پر بے شمار گھنٹوں کے انٹرویو ملیں گے. لیکن وہ غلط بیانی کے ساتھ ہے نا، اس لیے دیکھنے کو دل نہیں کرتا ان کا. مفتی صاحب نے نیچے لکھا ہوا ہے قادیانی نبی، لینا تو نہیں کوئی نہیں قادیان کے ساتھ، اس کا نا جماعت کے ساتھ. تو یہ نہیں اس جھوٹ کا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں اس جھوٹ ہے نا. تو جھوٹ سے تھوڑا سا بو آتی ہے کہ اس کی بغض کی، تو پھر وہ سننے کو دل نہیں کرتا. ہر انٹرویو کے نیچے علیم صاحب لکھا میں ہوا ہے معذرت قادیانی چاہتا نبی. ہوں، یوٹیوب کے نیچے غلط لکھا ہوا ہے نا، بندہ تو صحیح بول رہا ہے نا، جو آپ جس کو سننا ہے وہ تو صحیح بول رہا ہے میرے نا. الفاظ پہ غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب نے جو انٹرویو کیے ہوئے ہیں، ہر ایک کے نیچے لکھا ہوا ہے قادیانی نبی قادیانی نبی. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں جانتا ہوں ان کو، کوئی تعلق ہی نہیں ہے جماعت سے، لیکن قادیانی نبی. اس لیے ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب کا انٹرویو دیکھنے کو دل نہیں کرتا. ہاں چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ جب مفتی صاحب کے اگر آپ نے انٹرویو کبھی دیکھ لیے نا، تو وہی باتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، اکثر باتیں وہاں پر بھی یہی ہے. اب جو سکیزوفرینک ہوتا ہے نا، اس کی ہوتی ہے فلائٹ آف آئیڈیاز، اور اس فلائٹ آف آئیڈیاز کی ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے. اس کے فلائٹ آف آئیڈیا کی ریسٹرکشن اس ڈائریکشن میں ہوتی ہے جس ڈائریکشن میں اس کا تھوڑا سا علم ہوتا ہے.
तो आपको एक बात नजर आएगी कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज तो होगा। अब मैंने इनके इंटरव्यू भी देखे हैं, जैसे मैंने बताया बर्कशायर में मैं इस आदमी से मिला भी था, ये इंग्लिश डिफेंस लीग वालों के साथ वहां खड़ा कुछ नारेबाजी कर रहा था। तो मतलब वो हर दफा सिमिलर किस्म की चले मैं दोबारा बताता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये शायद उस अच्छा ये खुद आया या इसका कोई डिसाइपल आया, ये नहीं बता नहीं, दें। इनके ये जो जाहिद खान साहब हैं, ये मसीह ज़मान होने का दावा रखते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो इनके मुख्तलिफ अंबिया में से जो एक नबी हैं वो अतर साहब है, वो तशरीफ लाए थे। वो अपना तारुफ भी ऐसे ही हाँ हाँ, करवाते हैं नहीं नहीं जैसे नहीं, मैंने ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ उनका गया। एक नबी आया था अभी, उनका एक भाई और। इसके बेशुमार नबी हैं, जो इसको मान लेता है ना और इसका कॉन्फिडेंस उस पर बढ़ जाता है, ये उसको नबी की क्वालिफिकेशन दे देता है। ये भी बात मैं आपको बता दूं, ये भी बात मेरे इल्म में है। तो ये खुद अब देखें, एक दफा इसने ये कहा, अब ये पहले तो ये बातें तो मैंने बताई जो मैंने 1 to 1 अच्छा डॉक्टर साहब आगे बढ़ने से पहले माजरत आपको काट रहा हूँ, ये जितने भी डिसाइपल्स हैं इसके 60 हैं 70 हैं 100 बंदा, जितने भी बंदे हैं, ये इसने कहाँ से लिए हैं? कादियानियों में से मीटिंग निकले में से? से। नहीं बंदे मतलब किस कम्युनिटी से आए हैं? हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ, इनमें से बहुत सारे लोग जो है ना वो लोकल भी हैं, जर्मन हैं, और इंग्लिश डिफेंस लीग के 1-2 गोरे भी इसके साथ हैं। लेकिन इसकी मुलाकात उनसे ये रीहैब कोर्सेज में हुई, जहां पर सारे स्किज़ोफ्रेनिक आते हैं, तो वो इसके पीछे हो गए। इसने ये मेरे ख्याल सुपीरियर कहानी सुनाता है दूसरे स्किज़ोफ्रेनिक के मुकाबले में। और अगर आपका ये पूछ रहे हैं कि क्या कादियानी इसके पैरोकार हैं, तो मैंने नहीं कोई देखा। और मुझे इसका मतलब फिर सुपरफिशियल एक सवाल उठता है, एक इतने बड़े आलम, इतने बड़े मुफ्ती ने कादियानी क्यों लिखते हैं? वो इस तरह का झूठ एक आलम दीन को बोलने की क्या जरूरत पेश आ गई? ये एक सवाल है। उसकी मैं वजह बता देता हूं आपको। यह सवाल मैंने इससे डायरेक्ट पूछा था कि आप जब इसने मुझे कहा ना कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो थे उन्होंने इसके हाथ पर आलम अरवाह में बैत की, तो मैंने इससे डायरेक्टली पूछा था कि जी आप कादियानी थे पहले? कहता है मैं कभी भी कुछ नहीं था। ये इसकी बहुत सख्त प्रॉब्लम है कि ये आपको बड़े वेग आंसर्स देता है। तो इसके साथ एक आदमी था, उसने कहा कि ये पाकिस्तान से है आदमी, और मैंने जब इनसे प्रोब करके इस आदमी से पूछा ना कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने आपको बताया नहीं? हाँ, कहता है जी वो नबी हैं, वो तो बहुत बड़ा उनका मरकज है, इसने रबवा का नाम लिया, चिनाब नगर नहीं उसे कहा। तो मैंने कहा आपने देखा है जी रबवा? कहता है हाँ जी मैंने देखा है, वहां पर वो बहिश्ती मकबरा है, और इस तरह के कुछ मुझे लगा कि कुछ वाकफियत है। मैंने लेकिन जब डायरेक्ट सवाल किया ना कि आप कादियानी हैं या थे, तो कहता है मैं तो कभी भी कुछ नहीं था, मैं तो डॉक्टर साहब हमेशा ये से हाँ जी। मैं आपको बता देता हूँ, ये बरेलवी मकतबा फिक्र से इनका ताल्लुक था। नीला गुंबद लाहौर से इनकी पैदाइश है, वहाँ के राशि थे ये। अतर अच्छा। साहब भी पहले बरेलवी थे। ये बात उनसे मैं ऑन एयर पूछ भी चुका हूँ, तो वैसे भी मुझे क्योंकि इन्होंने थोड़ी डिटेल्स वो डिस्कशन मेरी हुई थी। जमात अहमदिया से दूर दूर तक ना कोई ताल्लुक है, ना ये मानते हैं, ना इनका हाँ ताल्लुक ठीक है, कादियान से है। हो सकता है, सवाल मेरा लेकिन ये है, इतना बड़ा आलमे दीन, इतना बड़ा आलमे दीन जो के मुफ्ती भी है, मुफ्ती को मेरे ख्याल में 40,000 अहादीस भी शायद याद होती हैं। मुझे तो मैं गलत हूँ इस नुक्ते पे, लेकिन आलमे दीन जो बहुत बड़ा होता है वो साथ में फिर मुफ्ती भी होता है, और जिसकी 30-35 साल का तजर्बा भी हो, खत्मे नबूवत का सबसे बड़ा मुजाहिद, और तकरीबन तकरीबन खलीफा भी वो क्लेम करते हैं। वो झूठ क्यों बांधते हैं? देखें मैंने सवाल उनके ये है बस। इंटरव्यू अलीम साहब देखे हैं मैंने। अलीम साहब मैं बता सकता हूँ इस बात का जवाब। जी, कोई तो दो सवाल दे दे। कादियानी की बात पूरा है। कादियानी टेबल पे पड़ा है, वो कादियानी पीर इसकानी सर साहब वो से लेके कादियानी चेरीज नबी तक कोई बंदा बता दे। सर बाजी है कि वो जब लिखेगा ना कादियानी नबी तो उसको व्यूवरशिप ज्यादा मिलेगी। इसमें इतना कौन सा वो मसला है? सिर्फ लेकिन व्यूवरशिप है। झूठ तो बहुत बुरी बात है, सारी बुराइयों की जड़ झूठ है। और मैं बता चुका हूँ कि झूठ है, लेकिन कायम है, व्यूज चल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो व्यूज चलते हैं। मैं बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, वो भाई कादियानी नहीं है। अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे, वीडियोस डिलीट करे। हाँ देखिए, मैं लेकिन नहीं। अलीम साहब आपसे एक अर्ज करूंगा कि आप इस आदमी के मुफ्ती साहब से इंटरव्यू एक बार जरूर देख लें, कोई हर्ज नहीं अगर उन्होंने कोई गलत इंफॉर्मेशन लिखी है। लेकिन इस आदमी के साथ उनके इंटरव्यू बड़े एलेबोरेटेड हैं,
और दूसरे जो एक क्या नाम है, मुझे उनका नाम भूल गया है, वो अमेरिकन में है, वो मेरे मुल्हम ख्याल कादिर नहीं वो अमेरिकन बॉर्न है, पहले आपकी जमात से उनका ताल्लुक मुल्हम था। कादिर नाम है उनका, नहीं कादिर साहब है, ना वो ना है कनाडा में। अहमदिया फैक्ट चेक वाले अच्छा, बशीर साहब। हाँ, एक दिन बशीर साहब से भी इस बारे में बात हो रही थी, मेरा ख्याल है कि बशीर साहब इसका इंटरव्यू करना चाहते होंगे या कुछ ऐसा था। तो उनका भी परसेप्शन एक लिहाज से ऐसा था कि इनका शायद जमात से कभी ताल्लुक रहा हो, लेकिन आपकी बात मैं मानने को बिल्कुल तैयार हूँ नहीं, कि क्योंकि इस शख्स का ताल्लुक नीला गुंबद से है, मैंने पहले भी सुना है, मतलब मुझे जी नीले गुंबद से है, मतलब कि मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, मुझे तो इन्होंने वो महल्ला वाला सारा हमने मैच किया हुआ है, डाकखाना मिलाया हुआ है, तो ठीक फरमाते हैं ये। तो ये अफवाह बड़ी दूर दूर तक है, सिर्फ मुफ्ती साहब ने ऐसा नहीं लिखा, बल्कि अभी आप गूगल करें तो सबसे ऊपर जो इनके कादियानी लिंक का आएगा वो अहमदिया फैक्ट चेक वाले का आपको मिलेगा। डॉक्टर साहब जरा डॉक्टर साहब जरा माजरत, अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वो क्या नाम है कादियानी नबी, कादियानी नबी, तो इन्होंने भी तो लिखा हुआ है ना अहमदी मुस्लिम, फिर इन्होंने क्यों लिखा हुआ है अहमदी मुस्लिम? ये तो है नहीं मुस्लिम। किन्होंने अहमदी मुस्लिम लिखा? इन्होंने, ये अहमदी जमात वालों ने क्यों लिखा हुआ है अहमदी मुस्लिम? फिर ये भी मटाएं। नहीं वो देखो, वो अलग डिस्कशन है, वो अलग बात है। अच्छा, अगर तो बशीर साहब ने लिखा हुआ है ना अहमदिया फैक्ट चेक पे, तो मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि बशीर साहब मिटा देंगे, जैसे मेरी बात होगी। हाँ, आप उनसे बात करें, उन्होंने ना सिर्फ लिखा हुआ है अभी मैं मैसेज छोड़ दूंगा। हाँ, मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ अलीम भाई से। बशीर में बड़ी क्लासिक जरूरत है, वो कर देगा, वो मुझे पता है। अली भाई से पूछे, उनकी ब्रॉड है माशाल्लाह। नहीं, अली भाई की तो खैर है, आप माशाल्लाह मोहतरम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं। ना, आप जो मर्जी, अलीम भाई बैठे हैं। अच्छा अलीम भाई, मेरी यार सुन लें, जरा तसल्ली से बात सुननी है। मैं नहीं कह रहा कि उनकी जमात के सारे लोग जो है वो कादियानी है, ना मैंने ऐसी बात की है, ना कुछ की है, लेकिन जो तासुर दिया जाता है ना कि आमतौर पे जो नई नबूवत का दावा करता है कोई इस तरह का, वो ऑटोमेटिकली लोग उसको अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कादियानी। उसकी वजह सुन ले मेरे भाई, यहाँ पर आपको भी मैं लोगों के नाम गिनवाने शुरू करता हूँ अलीम भाई, जिनसे मैंने सवाल सुना है पहले। हाँ ना, आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ, आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ, आपसे सवाल क्या है, मैं अब कह रहा हूँ, आपका सवाल है कि उन्होंने कादियानी क्यों लिखा हुआ है, लफ्ज कादियानी क्यों यूज किया हुआ है? ना शहर से ताल्लुक है, ना जमात से ताल्लुक है, वो है ही नहीं। कहते तो मैं अतर साहब को दोबारा फोन करके हाँ, मैं वजह बताने लगा ना, वजह आपको वजह भी तो सुन लेना यार मेरी जान। लेकिन भाई आपकी जमात के लोग, मैं ये सवाल है मेरे भाई सुन तो लेना यार, कोई जवाब तो अलीम भाई ये तो ना करें आप, तलत साहब की तरह तो ना करें आप। तलत साहब हैं, आप अलीम या अलीम है? पहले मुझे ये बता दी मेरी बात किससे हो रही? मुझे लग रहा है इसमें मलक अमान की रूह आप में घुस गई है इस वक्त, क्योंकि आप, माफी चाहता हूँ। हाँ शुक्रिया। अर्ज ये है कि आपकी जमात के लोग जा बजा दावे करते हैं, मिसाल के तौर पे अपने ट्रुथ सीकर साहब हैं, मिसाल के तौर पे मौलवी साहब हैं, मिसाल के तौर पे सियालकोटी है, वो ये सिद्धू सियालकोटी नहीं, वो जो दूसरा 30 सिखां दा के पता नहीं क्या उस तरह आईडी है, ये सब लोग जबरदस्ती कह चुके हैं, खास कह चुके हैं कि भाई हम तो नबूवत के इजरा को मानते हैं, कोई और आएगा तो हम मान लेंगे, कोई और आएगा तो हम मान लेंगे। ठीक है, अक्सर ये लोग कहते हैं, तलत साहब खुद कह चुके हैं कि कोई और आ जाएगा तो मैं मान लांगा। तो इस वजह से ये जो परसेप्शन है आपके खिलाफ के कोई भी नया नबी के आने का कॉन्सेप्ट सिवाय इसके कि आपकी जमात के और किसी लोगों में मौजूद ही नहीं है, इसलिए लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि भाई अगर किसी ने नई नबूवत का दावा किया ये जमात कादियान से होगा। ये अर्ज है, अगर आप मेहरबानी करें। आपने बहुत प्यारे अंदाज में बहुत अच्छी आपने नाकाम कोशिश की है। सवाल सुनिए दोबारा। सवाल ये, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा। मुफ्ती आलमे दीन खत्मे नबूवत का मुजाहिद, जिसने बेशुमार हजारों इंटरव्यू किए और वसी तजर्बा रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आम परसेप्शन की बात नहीं कर रहा। नंबर 1 अल्फाज की अभी तो माशाल्लाह दमा बरकातहू जो है वो जियारतों पे निकले हुए हैं। जब वो वापस तशरीफ लाएंगे अपनी जियारात से, तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये जो आपने इंटरव्यू किया था, क्या ये बंदा एक्स कादियानी था? मैं आपको खुद बता सकता हूँ कि मुफ्ती साहब के पास ज्यादातर लोगों का जो टाकरा होता है ना, वो अब्दुल कादिर मोलम जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये नदीम आएगा, ये मसूद आएगा, या ये नीचे बैठा हुआ है अहमद सुल्तान बैठा हुआ नीचे, ये अहमद सुल्तान नीचे बैठा हुआ है, इससे पूछे ये अब्दुल कादिर मोलहम जो है ये एक्स कादियानी ही है।
भाई ये वो एक्स तो मेरी अभी कादियानी भी था, लेकिन वो नहीं कादियानी है बताता था फैसल अपने आप भाई। को, मेरी वो बात अपने आप को सुने। नहीं बताता था कि मैं एक्स कादियानी हूँ। वो हम यही बात कहता क्या था कि कर रहे मेरे हैं जो इल्हाम फैसल है भाई? या आप बहुत वाजिद मोहतरम या हैं, माजिद, पता आप नहीं, वो बहुत अपने आप को मोहतरम हैं, कादियानी तो नहीं कहता था, लेकिन आप उसको बहुत हमें मालूम है। हम उसका जिक्र जब भी करते हैं, चाहे वो मुल्हम है चाहे वो जो भी है, हम उसको एक्स आपको पता कादियानी है इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें मालूम है। वो एक्स बरेलवी भी है, एक्स देवबंदी भी है, एक्स अहले हदीस भी है, ये भी आपको पता है? हाँ, वो ये बैठा हुआ है, 3 दफा तो हमने उसको कलमा पढ़ाया है। तो एक फिर बात खत्म हो गई। खाली अब तो छोड़े एक्स उसकी बरेलवी नहीं बात, कहे लेकिन उसको। आपको मकसद अच्छा अर्ज लेकिन करने मैंने का मेरा सवाल कि क्या है, मेरा सवाल क्या है? मैं अपने मुफ्ती साहब से जरूर पूछ दूंगा आपकी अच्छा खातिर, रुके ना, स्पेशली मैं अभी जी आपकी मैं मुझे खातिर बता दूं, पूछ दूंगा मैं कि ये जिस कंक्लूड बंदे करूंगा। का ऐसे ना इंटरव्यू कर रहे करें, थे, ऐसे क्या ना ये एक्स करें। कादियानी था या नहीं था? अगर उन्होंने कहा एक्स कादियानी, उसने बताया, तारुफ किया है, तो उनका टाइटल ठीक है। अगर ये उन्होंने कहा नहीं, ये मैं बंदा नहीं एक्स कहा, कादियानी नहीं था, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस टाइटल में मैंने तब्दीली कहा कर लें। अभी इतने लोगों की मौजूदगी में उनका 2 टोक बयान दोबारा, ये मैं बड़ी दफा ले चुका हूं, दोबारा ले लेते हैं। आपका ताल्लुक कभी जमात से था नहीं, आप कादियानी थे नहीं, है इंटरव्यू नहीं। किया ना, जिसका उन्होंने इंटरव्यू किया है, इस बंदे का तो इंटरव्यू यार नहीं ना मैं किया मेरी हुआ कंफर्म जिसको कर बात दूं, आप सुने लेके ना, आए थे। मुझे मौका देंगे अहमद थोड़ा। सुल्तान मौजूद है। अहमद सुल्तान साहब, सवाल मैं और करता हूं, फैसल भाई बड़ी कोशिश करके मुझे कहीं और ले जाते हैं। सवाल ये है कि एक आलम आप दीन, देने नहीं दे रहे। आपका मैंने सवाल भी दोहराया। आपका सवाल है कि मुफ्ती साहब ने ये टाइटल लगाया हुआ है, मैं तो अगर ये जान बंदा की मान पाऊं तो कुछ अल्लाह अर्ज की कर सकता जुर्रत हूं। पैदा करें, कहीं गलत सलीम लगाया, भाई क्या के हो गया? मौक़िफ़ की मैं तायद करता हूं, कोई पानी कादियानी है आगे? जमात का नहीं लिखना चाहिए, मैं आगे मानता हूं पानी है? सर। जी जुर्रत पैदा करें, कहीं गलत लगाया, झूठ लगाया पे उसके लिए लगाया, व्यूज के लिए तशरीफ लगाया, लाएंगे। कहीं यार मैं मैंने अब्दुल आपको कहा कादिर है के ना बारे यार में अजीब कुछ भाई, कंफर्म अब कर सुन तो दूं। लेना, जवाब भी सुन लेंगे, आपने बस रौला ही डालना है। मैंने आपको कहा इस वक्त आप में आ गई है रूह मलक कमान की, कुछ या कुछ पढ़े अपने अल्लाजीना इस वक्त। आमनू, मनु भी हाँ। मौका दो यार। अहमद अच्छा हाँ सुल्तान साहब यार, बोल रहा बताइए तू, बोल रहा मैं कादियान। बाद च गल करांगा, तू कर यार अहमद सुल्तान, बोल बोल। अब्दुल कादिर की थैंक यू बात नहीं हो रही है, लेकिन आप कर लें। यार। मैं वो बता रहा हूँ कि वो जो बंदा जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, अब्दुल कादर की गल नहीं जी करनी। हाँ, अब्दुल कादिर की, मैं क्योंकि मैं उससे फ़ोन पे भी कांटेक्ट में रहा हूँ और वैसे भी जो था मैंने बातचीत की हुई है। तो जब उसको ये आना हुए थे ना इल्हाम, तो मैंने कहा कि शायद ये जो था बेचारा, जो था वो मजाक कर रहा है ना। मैंने पहली मेरी फीलिंग ये हुई कि शायद मजाक कर रहा है। तो मैंने जब उससे मीटिंग वगैरह की तो मुझे ऑफर कर रहा था, कह रहा था कि तुम मेरे नायब बन जाओ, तो जो था मैं तुम्हें खलीफा बना दूंगा। मतलब कि उसकी मेंटल हालत जो थी वो इस तरह की थी। तो उसके पेरेंट्स ने भी उसको निकाल दिया हुआ था और वो अपने मामू के यहाँ जो था वो रह रहा था, मामू के यहाँ यहाँ कनाडा में। और वो पहले अहमदी था, अहमदी के बाद जो होता वो अहले हदीस बन गया, अहले हदीस के बाद जो होता वो देवबंदी बन गया, देवबंदी के बाद वो एक बरेलवी मॉस्क में जाकर जो होता वो इमाम लग गया। और उसने मुझे ये बात खुद बताई थी कि यार वो बहुत ज़्यादा हैवी डोजेज मेडिसिन जो होती है ना, जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, उनके ऊपर था। तो इसलिए उसके जो इल्हामात हैं उनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। बस ये मैंने स्टेटमेंट देनी थी। थैंक यू। अब मेरा सवाल ले लेंगे, अगर जी मेहरबानी जी करके दोस्त इजाजत दें तो। प्लीज। आज अगर मौका मिला ही है तो मेरा सवाल है, एक मासूमाना सा सवाल ऐसे है। जाहिद खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है जमात अहमदिया से, ना जमात कादियान से, ना वो कादियानी शहरी हैं, कोई दूर दूर तक। जाहिद खान साहब बरमला हर बंदे को बताते हैं कि मैं कादियानी नहीं हूं, हर दफा बताते हैं वो। ये मैंने उनसे पूछा है, क्योंकि मैं इसका खुद गवाह हूं। मैंने ऐसे ही पूछा, खाली मैंने नहीं और लोगों ने भी पूछा, मैंने कंफर्म किया। अभी कर रहा हूं, देर नहीं हुई, देर है दुरुस्त है, अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी अगर आप दोस्त मेरा साथ दें तो हम हक सच का साथ देते हुए सच की जीत करवा सकते हैं। अभी भी वो कहते हैं कि मैं कादियानी नहीं हूं। एक आलम दीन, बहुत बड़े, खत्म नबूवत के सबसे बड़े मुजाहिद जितने इधर बैठे हैं, इनसे भी बड़े, सबसे ज्यादा क्लेम करते हैं, वो खिलाफत के भी दावेदार हैं और उनके नाम से मुफ्ती भी लगता है। वो नीचे लिखते हैं हर इंटरव्यू के नीचे, कादियानी नबी से मेरा मुनाजरा। हर एक को रबी कहते हैं और हर नबी कहते हैं कादियानी नबी है। अहमद सुल्तान साहब जुर्रत का मुजाहरा करें, बताएं ये बात ठीक है या गलत है। अगर गलत गलती हो गई, आप तस्लीम करके वीडियोस डिलीट कर दे। जी अहमद सुल्तान साहब। जी जी, ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई जो थी वो झूठी स्टेटमेंट या इस तरह का बैनर लगाया हुआ है कि एक्स कादियानी नबी या इस तरह कुछ करके,
तो उनको डिलीट कर देना चाहिए, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स नहीं, और जो मिथ्स हैं उनको जो बिल्कुल प्रोजेक्ट ना किया जाए। चले ये मियां जवाब अलीम साहब, आप जरा बस करें, मुफ्ती की बातें अली जब भाई अपनी मुझे बुराड मौका पे मिलना जाएंगे ना तो चाहिए ये मैं जाके जवाब उधर राजनीति की करें, बात ठीक कर है? रहा जो हूँ आपने भाई। प्रोग्राम करना है ना इस भाई मौजू पे, बात सुने, तो आप आपने उधर क्यों जाके करें। लेकिन मेरी अलीम बात भाई अहमद सुने, अली भाई मेरी आप आवाज को दबाया गया, मुझे मौका दिया जाए मेरी आवाज बात अपनी सुने, वापस सुनाने ये का। क्योंकि आवाज बंदा कौन सी नहीं है बात तो कर फायदा भाई, कौन नहीं ना। मैं अलीम कालमी साहब दीन अगर की बात बंदा कर रहा होगा हूँ। ना, बंदा ओ कोई भाई होगा ना, कालमी फिर दीन की बात बात कर करने रहा के हूँ। फायदा नहीं ना। ओ भाई ये कालमी दीन की बात कर रहा हूँ यार, किसकी और बात कर रहा है नहीं अहमद अली? क्योंकि कहने का मकसद है कि अगर आपने कोई बात उनकी करनी है ना, ठीक है, वो आएंगे तो आपकी आमने सामने बात करा देंगे। भाई टाइम मैं जाया हुआ है, एक बेफजूल आलमी सब दीन बंदे की बैठे बात हुए कर हैं। रहा हूँ, एक गलती की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये कोई कदगन है कि किस सन तक के आलम के बारे में हमने बात करनी है, किस सन नहीं के नहीं, बाद के आलम के बारे में बात नहीं करनी। मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ अब बात को खत्म करें। तो अभी जब अभी मुफ्ती साहब उसको खत्म आएंगे, करें और जो बातें हैं अपना आपकी ऊपर फैजी आ भाई जाए। ने भी बोला है, फैजी भाई अभी ने भी खत्म बोला है। करें और बिश्ती मकबरे के ऊपर आ जाए। अभी बात खत्म करें, बिश्ती मकबरे पे आ जाए। आप अच्छा, ये कह रहे हैं। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, जरा सुन ले अलीम भाई, बात सुन ले। आपका इतराज हमारे पास आ गया है, कुछ आपका टॉपिक्स आपके इतराज है। फेवरेट है, कुछ मेरे फेवरेट है, क्या मसला है इसमें? अच्छा यार, देखे ना यार, तो अब देखे, मैंने कितनी तसल्ली से बात सुनी है। आपने क्या अहमद सुल्तान की सुननी है, उसकी भी सुनने दी है। अब तो मेरा जुमला सुन ले यार, जुमला ही कहना है, कोई लंबी तकरीर खुतबा तो नहीं दे रहा मैं। अर्ज ये है कि आपका इतराज हमारे पास आ गया है कि जनाब वो जो वीडियो लगी हुई है उसके नीचे लिखा हुआ है कादियानी नबी। अभी हजरत साहब जो हैं, मुफ्ती साहब जो हैं, वो जियारतों पर गए हुए हैं। वो जियारतों से वापस तशरीफ ले आएंगे तो हमारे पास टिकटॉक पर ही होते हैं। उनसे मैं अर्ज करके पूछ लूंगा कि मुफ्ती साहब, ये जिस बंदे का आपने इंटरव्यू किया था, ये कादियानी है या कादियानी था या इसका जमात से कोई ताल्लुक था? वो जो मुझे जवाब देंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अगर उनका जवाब इनकार में आया तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती साहब, अगर वो कादियानी नहीं था तो हमें टाइटल में ऐसा नहीं लिखना चाहिए। यही आप आपका मजम्मत कर मुतालबा है? देंगे, मजम्मत करेंगे सारे दोस्त, मुझे बहुत करनी शुक्रिया। चाहिए मजम्मत। मजम्मत आप कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। आप मुफ्ती साहब से क्यों पूछ रहे हैं? जो बंदा है मौजूद, जिंदा है, दोनों दोस्त मौजूद है, वो कह रहा है मैं नहीं हूँ। चलें, खैर, मजम्मत का इंतजार करूंगा मैं जनाब। अलीम साहब, गुस्सा बंदे करने का की तो जरूरत नहीं इंटरव्यू है, नहीं मैंने यही करेगा बोला है ना, अलीम वो भाई। आएंगे ना अपने अलीम तरीके से भाई सही आप तरह यार, अहमद बताएंगे। अली भाई इस एक तरह मिनट मैं सुने, आधी आपका बात शोर करूंगा। बहुत आता है। अहमद भाई, आपका बहुत शोर आता है, बात ही नहीं समझ आती। कोई और भी आपके वाली बात कर रहा है, थोड़ा मौका दे। अलीम अहमद भाई, आप हमें, आप जिस बंदे को आज लेकर आए हैं ना, इसका तो इंटरव्यू नहीं किया हुआ ना मुफ्ती साहब ने। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जिसके इंटरव्यू के ऊपर कैप्शन लगा हुआ है ना ये वाला, मुझे मुफ्ती साहब जिस वक्त वापस तशरीफ ले आएंगे उनसे पूछ लेने दें कि ये उस बंदा जो जिसका आपने इंटरव्यू किया हुआ है, जिसका आपने कैप्शन लगाया हुआ है, इसका जमात से कोई ताल्लुक था? अगर वो जो जवाब देंगे वो मैं आपको बता दूंगा। भाई इसके ठीक है, ऊपर अब आप ठीक आए, है, अगला बस सवाल बताएं कि खत्म करें, बिश्ती मकबरे पे आपका आए। अगला सवाल क्या था, अगला टॉपिक क्या था, वो चलाएं, मैंने कहा खत्म कि करें इस आप बात को। खत्म करें और बिश्ती मकबरे पे आए आराम से। वो पूछ लेंगे, बाद में आपको बात कर लेंगे इस पे। मेरी तो बात सीधी सीधी है भाई, मजम्मत करें, गलत बात है ये। उस तरफ नहीं जाना आपने, बाकी ये कदगन लगानी है। वेरिफिकेशन की क्यों इतने मुजम्मत करूं उलमा पे अलीम बात भाई? करनी है, मैं यहाँ जो पर उलमा फोत हो बेवकूफों की चुके हैं तरह, उन पे बात करनी मैं है, वहां उलमा यहाँ पे पर जाहिलों की तरह मुजम्मत कर दूं, बाद में मुफ्ती साहब वापस तशरीफ लाए वो के हाँ वो बंदा कादियानी था, तो मैं खुद झूठा पड़ गया ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं उनसे पूछ लूंगा, उसके बाद अब कहीं को आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। हाँ, चलें, बात आपका बिल्कुल इंतजार ठीक है, मुफ्ती साहब जो कहेंगे वही ठीक है। इंतजार करते हैं। मुफ्ती साहब जो भी कहते हैं बरहक कहते हैं ना, उस तरह तो नहीं कहते। बारह तो अल्लाह माफ यार करे। मुफ्ती साहब की तो क्रेडिबिलिटी मशकूक है, उनकी बात थोड़ी मानी मशकूक, जाएगी। बहुत मशकूक है यार, उनके झूठ ऊपर बोलते हैं वो। भरपूर इत्मीनाद है, सुल्तान, तू अपना मुसलमानों बकवास को बंद रख, ठीक मुसलमानों है? को उनके ऊपर भरपूर इत्मीनाद है। पुलिस स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल बात ये जायज कर रहा हूँ नॉन या सीरियस नाजायज कर रहा हूँ? पर्सनैलिटी है। बिल्कुल ठीक, हमें मुफ्ती नहीं, साहब पर मुफ्ती साहब 100% एक नॉन इत्मीनाद है, सीरियस उनकी नहीं, सब मुफ्ती पर्सनैलिटी बातें साहब की ठीक है। क्रेडिबिलिटी पर मुफ्ती साहब कोई फतवे सवाल कुफर के नहीं। लगा रहे हैं लोगों पे। मुफ्ती साहब बिल्कुल बिल्कुल। सच्ची बात करते हैं, उसमें तो फिर कोई आप भी गड़बड़ नहीं मानते हैं जो वो होती। कुफर के फतवे उन्होंने कल लगाए हैं वो ठीक लगाए हैं? सईद बिल्कुल ओवैसी जो ने उन्होंने लगाए हैं बिल्कुल ठीक है। कल फतवा लगाया है। किसको, आप लोगों को किसने? भी, किस पर आप पे लगाया भी है? लग गया वो। जो लोग मलिक कैसर के साथ बैठे हैं उन पे भी फतवा है। ये मैं अगर कल कल की अलीम बात है, भाई फिक्र ना करें, कल उसको की मैंने बात है। कलमा पढ़ाना है अभी जो इंशाल्लाह। है सैटरडे वो को मैंने उसको कहा हुआ, करें मुझे करें टाइम करें, देगा। तजदीद दीन करवाएं मलिक सैटरडे को कैसर वो के लिए। आपको कलमा पढ़ अपना के बहुत आके लाइव मुबारक पे हो, आपकी अलीम दावत साहब, बहुत सुनाएगा। मुबारक हो। अलीम फिक्र रंजवेज ना साहब करें। काफर, आप पे भी फतवा है वो। पीर इसकानी साहब पे भी, सईद ओवैसी बेटा आप पे भी लग गया है, साथ बैठे हुए हैं आप। कहा है अच्छा, उन्होंने, यही कहा है, साथ बैठने वालों पे भी फतवा है। नहीं, कब फतवा लगा है? वो एक उन्होंने अरबी का या फारसी का वो एक जुमला बोला था, जो कुफर के साथ बैठे, ये कुफर का वो भी काफर, जो साथ दे वो भी काफर है।
ये कल का फतवा है, कल या परसों नहीं का नहीं, फतवा वो है तो मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा ना। ओ भाई नहीं, मैं यार अब मुफ्ती हर साहब बात की पूछनी गवाही पड़ेगी। कोर्ट ऑफ लॉ नहीं में नहीं मानी जा एक सकती, बात वो हर अलीम जबान साहब तो से मुझे मैं निकल कह रहा एक हूँ, जुमला लोगों ने कहने दे टिकटॉक पे प्लीज। सुनाए हैं फतवे, नहीं सुनाए हैं लोगों ने। मुझे एक जुमला कहने दे प्लीज। अलीम साहब, आपकी जमात वाले लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़ें लो और जी, कुछ लो बात तो सुन लें मेरी, मुझे बात तो कंप्लीट करने दें, बात तो कंप्लीट करने दें। ये कल भी अमन जट ने कोई ब्रोड लगाई है, उस पर ये बात हुई है। जो बात वो कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई फतवा क्या नहीं है, कोई गलतफहमी थोड़ी सी हमारे मुसलमानों के अस्तगफिरुल्लाह, दरमियान। अस्तगफिरुल्लाह, सर सुन तो अस्तगफिरुल्लाह। लें, सुन तो मैंने लें, खुद मैंने अपने कानों से सुना है सुबह, सुन तो लें, मैं यही अपने तो कह कानों रहा से सुना है हूँ। मैंने। और उन्होंने कहा है हजूर किसी और फतवे से ले लेगा बात तो मेरे। कंप्लीट होने दें, बात तो अस्तगफिरुल्लाह कंप्लीट होने दें। जी, करें करें करें। थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी, मुफ्ती साहब चले गए हैं इराक, वापस आएंगे तो हम आपस में जो मुसलमानों के दरमियान जो बात हुई है वो खत्म हो जाएगी, ठीक और है, खत्म हो गई है। थोड़ा सा फतवा आपके लग गया है, लोगों ने थोड़ा सा राय फतवा साहब, लगा है। राय साहब, अब कल मैंने तो से बात ही मुका दी है। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो बात ही मुका दी अस्तगफिरुल्लाह, है कि मलक अस्तगफिरुल्लाह। कैसर को अल्लाह जिंदगी ओ रखे, भाई, इंशाल्लाह आप लोग हफ्ते तो वाले दिन सीधे हम सीधे, फिर कलमा पढ़ा लेंगे, और आप लोग कलमा कसम पढ़ा से के आपके पास सीधा सीधा भेजेंगे। मुंह पे बैठ के बोल आपकी लेते हैं लाइफ ऐसे। से नहीं, आगे आप सुनाएगा कैसे आपको कर लेते अलीम इंशाल्लाह। हैं? साहब, आप लोग इतने अलीम टैलेंटेड साहब, कैसे हैं? आप इसमें कैसे इतनी लेते हैं ये? सदाकत है, जितनी आपने पैसे पकड़े हुए थे कल, आपके ओ लोगों ने आपको भाई, बोला। मैं वो अहमद जाट साहब की बात पे नहीं कर रहा, मैंने खुद सुबह अपने कानों से सुना है। और वो हजूर, मलिक मैंने भाई आपको साहब, वो बताया भाई है उन्होंने कि ऐसे ही कहा जो मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों हमारे झूठ बोलूंगा? हमारे मेरा दरमियान उन्होंने कहा थोड़ी है गलत गलतफहमी, छोटा गलत सा गलतफहमी से फतवा लग गया हमारे कुफर का। नहीं, हमारे दरमियान छोटी कोई सी गलतफहमी है कुफर के फतवे की, बस बहुत ज्यादा फतवा गलतफहमी नहीं है। हुई है, हाँ, गलतफहमी कुफर के हुई है, फतवे हम की बस। गलतफहमी दूर कर अच्छा लेंगे। अलीम भाई, ये जो मलक तलत अस्तगफिरुल्लाह, तवान मलक पे अस्तगफिरुल्लाह, पिछले 3 फतवों की किसी चादरें बंदे आपको ने, लाई किसी हुई हैं। मुफ्ती ने फतवा नहीं लगाया, नहीं नहीं किसी नहीं, मुफ्ती ने फतवा नहीं लगाया, मुरब्बियों ने उसने तो ये लगाया नहीं है, कहा, उसने मुरब्बियों ये ने तो लगाया है, वो मुरब्बियों ने तो मुफ्ती हैं, लगाया है, वो मुरब्बियों ने तो मुफ्ती हैं, लगाया है। मीर रोस्टर वो मुरब्बी मुफ्ती नहीं है? हैं, वो मुफ्ती बिल्कुल हैं। है ओ भाई कैसे कर लेते हैं आप लोग? ओ साहब। भाई, इतना टैलेंट कहाँ से आ गया आप और लोगों में? मीर लतीफ साहब तो है ना, मीर ओ लतीफ नहीं, साहब को तो मुफ्ती मुरब्बी मानते मीर हैं। लतीफ तो मुरब्बी भी नहीं है, किसी मुरब्बी अच्छा, ने वो भी नहीं मुरब्बी। लगाया, कोई मुरब्बी भी नहीं है टिकटॉक पे। ओ भाई, आप कैसे कैसे अच्छा, लेते हैं? कितनी सदाकत है कि आपने पैसे पकड़े हैं, कितनी सदाकत है इस बोलो, बात में? ओए होए, ओए भाई, बात और कर रहे हैं। नहीं एक नहीं, मुफ्ती वैसे मैं आलिम आपसे दीन कह पूछ रहा रहा है, अंडर द ओ हूँ। टेबल हुई हुई भाई, डीलों को हजूर, ओपन मैं बात नहीं करते कितने राजा भाई। अंडर द टेबल जो डील हुई हो ना, अंडर द टेबल, उसको सामने नहीं आप पूछते। लोग नहीं, वो तो कैसे डिपॉजिट कर लेते हैं वापस नहीं ये? कर रहे अब अलीम यार आप साहब। इतने, मेरी बात राय साहब, देखें, आप मुझे मौका दें, मेहरबानी, दो बंदे बात ना करें। यकीन कीजिए, यही बात है, अगर किसी को मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब के फतवे पे यकीन नहीं है, किसी और मुफ्ती से फतवा ले आए। ये वो की आंदे ने ताड़ियां जुतियां तो मेरे सिर, मैंने खुद सुना सुबह। आप लोग कह रहे हैं छोटी सी गलती हो गई। ओ भाई, छोटा सा कुफर का फतवा, अलीम तो भाई, खुदा का, और वो कुफर हो मलिक गया, कैसर कुफर पे हो नहीं है गया, खाली, इस्लाम से बाहर हो गया जो ना। बंदा मलिक कैसर के कैसर पास भाई, बैठता है उस कैसर पे भाई भी पढ़ो मेरे नाल, जो मदद कर अशहदु रहे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हीं जिन्हीं गल सी हुण मुसलमान हो गया साडा, माशाल्लाह, कर लिया होर गल कर। मुबारक हो, तजदीद दीन हो गई, तजदीद अब दीन हो अपने गई, मुबारक हो, अब मुबारक हो, अलीम साहब, सबको मुबारक अलीम हो। साहब, अब पैसे ये काम, वापस करें। अब अमन अलीम भाई, सबको पढ़ाए, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ सबको पढ़ाए, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। मुबारक ਅਸੀਂ ਤਾਂ मुबारक ਕਹਿੰਦਾ मुबारक ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ मुबारक ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। तजदीद दीन हो गई, मुबारक हो गया, और तजदीद दीन हो गई, और पैसा भी मुबारक, वापस करें, पैसा भी वापस करें। जबरदस्त। मैं अब हैप्पी हो गया, मैं अब एतराज नहीं करूंगा, तजदीद दीन हो चुकी, मैंने देख ली। नहीं तो यही कहा गया था, वो मशवरा भी यही दिया था कि किसी आलम के पास जाएं और तजदीद दीन करवाएं, और शुक्र है आप लोगों ने फौरी कर ली है। सिर्फ बंदे रह गए हैं जो इनके साथ बैठते हैं, उनकी तजदीद दीन बाकी है बस।
बाकियों की खैर है, तो मुबारक हो मेरी निकाह तरफ से जब नहीं आपको, बनेगा, बहुत निकाह बहुत जब नहीं मुबारक हो। यकीन करें, मुबारक हो, मेरा इतराज खत्म हुआ। नहीं अलीम साहब आप सारा जो जितनी बात ये कर रहे थे ना, आपने पहले फैजी भाई इन्होंने पहले ताना दिया कि आप ये बात खत्म करके चलें और बात करें इस पर बेहश्ती मकबरे पर। ये इनको बड़ा खटकता है बेहश्ती मकबरा, इनको इल्म है कि वो सारा जो है वो अच्छा एक सवाल है, और बिश्ती मकबरे पे तो कल परसों में बात की है। अच्छा मुसलमान ऐसे करते हैं जैसे भी आपने किया है मलिक कैसर साहब को? मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपने कुछ बातें ना उस दिन वसीयत की और तदफीन के हवाले लाइल्मी होगी, की लाइल्मी हैं। होगी मेरी, हाँ, लाइल्मी होगी। लाइल्मी है आपकी, मैंने उस वक्त आपको काटा नहीं, लेकिन कुछ मिसालें मैं आपको जिंदगी की यहाँ के यूके की दे सकता हूँ, वसीयत वालों की इस तरह की, जहाँ पे अमानतन दफनाया गया कि जब तक वसीयत पूरी नहीं होती तब तक नहीं। इतनी क्या बेइतबारी है यार, तदफीन होनी है अगले की फैमिली रजामंद है कि हाँ हम दे देंगे, यहाँ पे अमानतन की जरूरत नहीं एक है, सेकंड अमानतन रुक का जाए, एक्स्ट्रा हम खर्चा थोड़ी देंगे। देर रुक जाए। कल परसों तरसों 3 दिन बात की है, पीर असकानी साहब ने भी डिटेल में बात की है, राज साहब ने भी। अभी अच्छा वक्त है, अच्छा मौसम है, अच्छा माहौल है, एक बंदा नया नया दारा इस्लाम में दाखिल हुआ है, कोई मिले हैं, कोई लड्डू बर्फी, कोई मुंह मीठा, कोई इस तरह के कोई या कोई मुबारक मुंह तो दे ना, ऐसे थोड़ी बात है, आगे असल छोड़नी में पड़नी है। अलीम साहब हेलो इस मलिक मौजूद साहब, से बचना चाहिए। अपना ठहरियो लीम साहब, हेलो तो हम मुबारक देना किधर के ने? हुसैनी साहब को भी जाके बता रहा होगा मिर्जा साहब के दावे इंशाल्लाह हफ्ते को, इंशाल्लाह। ये आज की सबसे बड़ी खबर ये है, ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ जिद्दे ਹੈਲੋ दीन ਤੁਸੀਂ हुई ਲੀਲੋ है। ਛੱਡੋ, ਇਹ ਕੀ सबसे ਨਾਮ ਹੈ, बड़ी ਲੋ खबर ਮੂੰਹ आज ਮਿੱਠਾ की। ਕਰੋ, ਫੁੱਲ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲਵੋ, ਛੱਡੋ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ 10 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਦਾ, 10 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਬਰਫੀ ਖਾ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਕਰ ਦਾਂਦੇ। यकीन करो ना बस बहुत हो गया बस ना, अगे इल्जाम लगते ने, अगे फड़े गए हैं, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਮਾਰ ਤੂੰ। मैं पूछो मुसलमानों के ब्रांड न्यू सर्टिफिकेट देता मलक कैसर नु, तलत सलीम अहमद ਉਹਨਾਂ ਨੇ सर्टिफिकेट कदों मिलेगा ओ पूछ ਮੈਂ के ਵੀ दसो। ਅੱਜ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਜਦੀਦ ਦੀਨ ਕਰਾਏਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਐਨਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤਜਦੀਦ ਕਰਾਓ। ਵੇਖੋ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟ ਸੀ ਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ऐसे नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। नहीं मैं जनाब मलिक कैसर साहब को तजदीद दीन करवा लांगा, कोई नहीं मसला, यही कलमा मैनू पढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮਲਿਕ कैसर साहब, ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। बात को छोड़ेंगे आप। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਓ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मैं ਇਹ हदफ ਥੋੜਾ देना ਜਿਹਾ वा, ਫਰਕ सिर्फ ਹੈ। नबी करीम का नाम लवांगा, हलफ देना बच्चों की कसम, अल्लाह की कसम। ਚਲੋ ਭਾਈ ਫੈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ मैं ਹਲਫ ਦਿਓ। सिर्फ और सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करांगा। आओ पढ़ाओ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु, मेरे दिल दा अल्लाह ਬੇਸ਼ੱਕ जानदा है ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ दिल ਜ਼ੁਬਾਨ दा ਵੀ अल्लाह ਉਹੀ जानदा ਇਕਰਾਰ है, ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, और यकीन रहे ਲੇਕਿन करो ਤੁਹਾਡੀ जिस ਇਹ मैं कह ਗੱਲ रहा हूं, ਤੁਹਾਡੀ हलफ ਇਹ ले रहा ਗੱਲ मैं, करो ਤੁਹਾਡੀ पढ़ाओ, ਇਹ ਗੱਲ यही ਤੁਹਾਡੇ समझ रखो। ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ओ भाई मैं कह रहा कि मेरी तजदीद दीन हो जाए, इस कलमा पढ़ने नाल ते होर की चाहिदा है। पढ़ाओ फैसल भाई बात पढ़ाएं। कराएं, कलमा पढ़ाएं, तशहद पढ़ाएं, इनको ईमान आप मुकम्मल पढ़ाएं। कराएं इनको। नहीं आप पढ़ाएं इधर ना। आपने डॉक्टर पढ़ाया साहब मलिक पढ़ा कैसर दे। साहब को, मलिक कैसर साहब मुझे पढ़ा दे, मलिक कैसर साहब आप डॉक्टर पढ़ाए। साहब पढ़ाएंगे, डॉक्टर साहब पढ़ा नहीं दें मैं आप। डॉक्टर साहब से पढ़ना ही नहीं है। असल में तो छोटा शैतान घुसा हुआ था ना, तो मेरा मेरे कलमा काबू जरा आता था। सख्त है मैंने थोड़ा डॉक्टर साहब से सा। बहुत पढ़ना ही बड़ा नहीं है, मैं शैतान है, आपको वो आलमी आप दीन पे मानता ही कुरान नहीं के हूँ। काबू आना है। मैं आलमे दीन मानता ही नहीं हूँ डॉक्टर साहब को, ना मैं फैसल साहब को मानता हूँ, मलिक कैसर साहब को मानता हूँ, बस आलमे दीन। उन्होंने शर्त भी रखी थी कि कोई आलमे दीन पढ़ाए, तो आलमे दीन मेरे लिए मलिक कैसर साहब है, जैसे आप थे। चलो मलिक कैसर साहब आप पढ़ा दे। पढ़ा दें दूसरा आप कलमा मलिक जो कैसर अभी साहब। आपको पढ़ाया है इन्होंने, वो मुझे पढ़ा दे। हाँ चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अन ला इलाहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु
वहदहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। लो जी, चलो जी, मुबारक हो, माशाअल्लाह। मुसलमान हो। मुबारक मुबारक दियो है, जी, मुसलमान मुबारक हो दियो। गए जमात। हाँ जी, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜੀ, और ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। जबरदस्त जबरदस्त, दिल्ली सब बरूदी नूं ने भी मुबारक पूछ लो वो नालो नाल ही। नहीं तारिक नहीं मुबारक। नहीं, साहब का वो नहीं पूछना। खत्म नबूवत का ਇੰਨੀ भी ਗੱਲ पूरा ਹੈ, पढ़ा दें। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ Yeah। ਇੱਕ 90% ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹੁਣ ਦੇ ਅਲੀਮ ਕੁਫਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਵੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅਲੀਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾ ਇਹ ਕਲਮਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਜਦੀਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਜਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ, मतलब ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम के बाद। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਨਬੀ। नहीं, हिंदू फिर नबी पे मानना कलमा मैं गलत साहब हो हूँ। गया जी, तो फिर कलमा गलत हो गया ना, गलत फिर हो तो गया। कलमा तो ਦਾ है ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। नहीं, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਾਇਆ। नहीं नहीं, अस्सलामुअलैकुम। ਜਿਹੜਾ कलमा कल नहीं गलत हुआ, कलमा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वो बंदा गलत होता है, कलमा नहीं गलत होता। हाँ, सही जैसे बात है, कसम सही नहीं ना बात है झूठी अली होती, अक्सा, दुरुस्त जैसे है। कसम नहीं ना झूठी होती, जैसे हम लोग अल्लाह की कसम उठाते हैं, अल्लाह नऊजुबिल्लाह, ने कसम नहीं झूठी होती, बंदा झूठा होता है। इसी तरह ही कलमा ने ठीक है, वो बंदा गलत हो गया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੇ ਅਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ चलो ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? मेरी गल मुफ्ती साहब तो कहते हैं पूरी मरज़ियत एक सब। मिनट, अभी जरा सुने तो सही ना। आपने कंफर्म किया है कि ये कलमा अगर आपको पढ़ाया जाए तो जब उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा आप उसमें किसी और को शामिल नहीं करेंगे। आपने ये अभी बिल्कुल नहीं तस्लीम करूंगा, किया, ठीक है। बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। तो फिर उसके बाद अभी आपने जो कलमा पढ़ा है उसके बकौल उस कलमे में मिर्जा साहब कहाँ से आ गए जो आपने उनको दोबारा कहा? मैं मानता हूँ। वो सारा दिन तो हम वही दुबदाते रहते हैं, उम्मती नबी मानते हैं। कलमे में तो कोई जिक्र नहीं है मिर्जा साहब का, ना उम्मती नबी का। कलमा जो है वो ठीक है, मैं मानता हूँ कलमे को, बिल्कुल मानता हूँ, सही मानता हूँ, उसी तरह मानता हूँ जिस तरह आप मानते हैं। और जो जहाँ पे नाम मोहम्मद आया, मैं बिल्कुल उसको सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानता हूँ, बस। आप अपनी बात करें अलीम साहब, आप अपनी बात करें। नीचे मैं अपनी ताहिर बात ही अमजद कर रहा साहब आ हूँ, गए हैं। ताहिर अमजद साहब और ऊपर किसी आके कर रहा हूँ। बताएंगे कि वो आदम से लेके मसीह कादियान तक सबको इस कलमे में शामिल करते हैं लफ्ज मोहम्मद के मैं साथ में। कह रहा हूँ जो नामे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानता हूँ कलमे के अंदर, बस। आगे फुल स्टॉप है। यार अलीम भाई, मैंने मान ली आपकी बात कि आपकी माँ जबान और आपका जो दिल है वो इस चीज की गवाही दे रहा है, लेकिन दूसरे हजरात यहाँ पर नहीं मानते, उनको बुला के पूछ सारे ले, हजरात भाई, पूछ वो ले। अब किसी की अपनी बात हो सकती है। मैं कलमे के अंदर जो नाम है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, बस बात खत्म हुई। उन तुसी वो ताहिर साहब ऊपर आ जाइए, मैंने कॉल ली है। ऐसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज और का कौन सबसे लोग बड़ी है, तुसी सबसे कौन बड़ा लोग तुसी है? सबसे बड़ा आज की खबर ये है कि तजदीद ईमान आज हमने करवाई है, फैसल साहब ने आज करवा दी है, और अलीम फतवा साहब जो है की वो रद्द हो गया। अलीम साहब ने और मैं तो मैंने तो जमात मुसलमान, कादियानिया मैं तो है ही छोड़ दी मुसलमान, है। मैंने कर लो मुसलमान, मैं तो पढ़ लिया। तजदीद दीन ते नहीं मेरी हुई, तजदीद ईमान ते आज ओ मलक अली साहब तुसी किते फिरन डे हो? कौन लोग तुसी हो? अलीम साहब सुनता ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦੋ। बिल्कुल कट्टे होणगीਆਂ जनाबे अली साड़ियां और तुसी मुस्तकिल ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਆਰੇ ਤੇ। हाँ, वैसे किस डिजाइन ਦੇ ਬਣੇ ਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਵਕਤੇ ਖਤਨਾ ਮੈਂ भाई, ताहिर ਚੀਖਾ अमजद साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ ਹੋ? ਜੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਵਕਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਖਤਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਕਲਮੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬਸ। ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होए
ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। भाई मौलवियों के फतवियां के बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं होता, प्रॉब्लम है ना। बाकी आखिर भाई मैंने आपको 2-3 वीक हो गए हैं कह रहा हूँ कि हमें कोई बयान जो है ना वो जिम्मेदाराना तौर पे देना चाहिए, किसी की सुनी सुनाई बात के ऊपर अपनी राय नहीं रखनी चाहिए। मैंने आपको ऑफर भी की थी कि आप प्लीज दोनों भाई कासिम भी और आप भी और भी कोई दोस्त शामिल होना चाहता है, टाइम निकालें और हम किसी साइड पर जाके नुक्कड़ वाली जगह पर जाकर सुकून के साथ आप लोगों को अपनी पहले बात सुन लें, उसके बाद फिर अपने ये जो आप बयानात दे रहे हैं दें। ये आप काफी गलत बयानात दे रहे हैं। लो मसलन कौन सा तय रंजन साहब आपकी जिस चीज के ऊपर आप लोगों के ऊपर फतवे लग रहे हैं, इस चीज के ऊपर कासिम के ऊपर भी ऑलरेडी फतवा एक दफा लग चुका है, लेकिन उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह तजदीद ईमान कर ली थी ऑन द स्पॉट। वो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मसला ये है क्योंकि आपको बात का मालूम ही नहीं है। आप लोग लाइलमी में हुसैनी साहब के डायलॉग जो है ना वो रिपीट करी जा रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि मैंने कौन सी गलत बात काफिर हो गए हैं। बिल्कुल जमील आखिर खुदाई किसकी है? कौन दोनों जहां का मालिक? डिस्कस नहीं करना। क्या नहीं करना? ये चंद फतवा फरोश मुल्ला या जिसको देनी है जहां भी एक दिन डिस्कस क्या नहीं करना, हम नहीं यहाँ पे जनाब। और कोई काम की गल नहीं डिस्कस करनी ना। अच्छा मतलब कि नासिर भट्ट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਫਤਵਾ ਆਇਆ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ हाई होंदी है ना, हाई होंदी ਕਿਉਂ है। ਆਈਓ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। आओ जाहिर ਲੈਣੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਮ ਨਾ ਲਾਈ ਮੌਲਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਬਰਥਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਫੈਜ਼ੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਨਾ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਕ। ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਸਟੇਰਿਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣੇ? ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ। ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਉਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗਿਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਤਜਦੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਜ਼ੁਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਖੈਰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੰਜ ਦੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। तजदीद दीन तो हो जाती है अलीम साहब, लेकिन उस पर जो है ना अमल करना पड़ता है। देखें कलमा पढ़ने
मुसलमान होने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो जाता। लेकिन जो कलमा पढ़ता है फिर उसे इस्लाम के हर हुक्म की तामील करनी पड़ती है। अगर कोई कलमा पढ़े और इस्लाम के अहकाम की बातिल तावील करे तो वो मुसलमान नहीं होता, वो ज़ंदीक हो जाता है, और वो कुफर की सबसे गई गुजरी शक्ल को ज़ंदीक कहा जाता है। आप खुद फैसला करें। आप जी अपना सईद और रिस्पीट साहब, एक और सवाल था वहां पे कि जो बंदे फिर उनके साथ बैठते हैं, आया उन पे भी फतवा लगता है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है जी। वो जो कुफर मैं भुल गया वो अल्फाज हूं क्योंकि मैं नलायक हाँ। उन्होंने कहा जी ਉਹਦਾ मतलब बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨੇ। नहीं, साथ देने वाला तो ठीक है, लेकिन बैठ के बात करने से तो कोई हर्ज नहीं। तो उसको कैसे कुफर वाले को पता लगेगा कि वो कुफर कर रहे हैं जब बताया ना जाए? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰੋਡ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਕਦੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਰੋਡ ਆਨ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਅਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਖੋਲੋ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢਣੀ पड़ेगी। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ये उसामा ने मुझे फूल मारे थे और कहा था कि वेरी फूल मारने वाला बंदा तो उसकी तो 2 दफा कलमा पढ़ाओ उसामा साहब को, 2 दफा उसामा साहब को 2 दफा कलमा पढ़ाएंगे आप। नहीं मैं मुसलमान हूँ, आप पढ़वा ले, ऐसी कोई बात नहीं, आप सब मुसलमान बैठे हुए। भाई वो ये इसी टॉपिक पे बात हो रही है। उसामा साहब आप समझते हैं कि ऐसे कोई बंदा किसी को निकाल सकता है या बाद में मशवरा दे सकता है कि भाई कलमा पढ़ो तो वापस आओ सलाह करो, या अल्लाह के और आपका मामला है? ये क्या कहते हैं? ये अल्लाह और आपका मामला है। आपने एक बार कलमा पढ़ दिया है, आपने शहादत ले लिया तो आप मुसलमान हैं। अगर आप निकल भी जाए तो वो अल्लाह और आपके दरमियान है, और अब वो बात वहीं से निकलेगी बाहर कि आपको कैसे पता है कि एक इंसान कलमा शहादत ले रहा है वो मुसलमान नहीं है। जबरदस्त। ये तो अल्लाह ताला को बेहतर पता ना। नहीं तो साथ ही उसामा साहब अगर कह दे कि मैं किसी और को भी नबी मानता हूँ तो फिर चले मैं सवाल रख देता हूँ। दानिशमंद लोग बैठे हुए हैं, मैं सैयद साहब को मुझे सुनने का बड़ा इत्तेफाक हुआ है, मैं इनकी खिदमत में एक सवाल पेश कर देता हूँ अपने इल्म के लिए। वो ये है कि कुरान की रूह से या हदीस की रूह से लोग बात करते हैं दायरा इस्लाम की, ये दायरा इस्लाम का वो दायरा ही क्या है, ज़रा इस पर रोशनी डाल दें जज़ाकल्लाह। दायरा इस्लाम एक ही है, बहुत सारे दायरे नहीं हैं। उसको दायरा इस्लाम इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि वो दायरा जिसके अंदर इस्लाम के वो अहकाम जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं उन पर अमल किया जाता है। अगर कोई शख्स उन अहकाम में से एक भी हुक्म को मानने से इनकार कर देता है तो वो इस्लाम से निकल जाता है। उसकी मिसाल ऐसे है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में एक ग्रोह ऐसा पैदा हुआ जिसने ज़कात देने से इनकार कर दिया, लेकिन वो इस्लाम के बाकी तमाम अहकाम पर अमल भी करता था और उन्हें मानता भी था। और उन्हें हज़रत उमर फ़ारूक की इस बात पर बहस हो गई कि क्या वो मुसलमान है या नहीं। हज़रत अबू बकर को ये कहना पड़ा कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और उनके खिलाफ जहाद किया जाएगा। और अगर लोग इस बात को भी तस्लीम नहीं करते तो तुलैहा बिन असदी नामी एक शख्स था जिसने नबूवत का दावा किया। वो पहले मुसलमान था, फिर उसने इस्लाम छोड़ा और नबी बनने का दावा किया। ये सज्जाह बिन हारिस और मुसलमा अल-कज़्ज़ाब और असवद अल-अंसी का हम असर शख्स था। तो इसके खिलाफ खुलफाए राशिदीन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जहाद का ऐलान किया और एक फ़ौज तैयार की। लेकिन उसके बाद उसने फिर ऐलान कर दिया कि वो इस्लाम में दाखिल होता है और उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम के तमाम अहकाम को उसने इख्तियार करने का अहद किया। तो उसके ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जहाद कैंसिल कर दिया। तो ये बात दो किस्म की बातें हैं। एक होती है हकूकुल इबाद, जब आप कहते हैं ना ये आपके और अल्लाह ताला के दरमियान है, तो वो हकूकुल्लाह हैं।
हकूकुल्लाह में यह है कि आप नमाज का इनकार तो नहीं करते, आप ये भी समझते हैं कि नमाज वाजिब है और फर्ज है हम पर नमाज, लेकिन आप उसमें सुस्ती करते हैं या फिर अल्लाह ताला से कहते हैं ओ मुझसे गलती हो गई, माफी, मगर उसका हक नहीं अदा करते। ये आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है। लेकिन ज़कात जब है, ज़कात हकूकुल इबाद में आती है, और ये आपके और हुकूमत के दरमियान मामला है। जब आप ज़कात देने से इनकार करते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरे और अल्लाह के दरमियान मामला है, क्योंकि ये मामला अल्लाह ताला ने लोगों के दरमियान कर दिया है। इसकी बुनियाद पर इस्लामी हुकूमतें चलती हैं, तो इसकी सजा फिर आपको लोग देंगे। और एक